Hello guys, this is Jyoti Rana. Welcome to my channel Biology Endeavors. Today I am going to teach you cell cycle and cell division, a chapter from the class 11th. So let's start cell division and cell cycle. Firstly, we will talk about unicellular organisms. Unicellular organisms. For example, this is amoeba. Amoeba is divided into the two daughter cells. That is a growth and reproduction, because both phenomena are same in the unicellular organisms, but in multicellular organisms growth and reproduction are of different phenomena. In multicellular organisms, cell division, we can say that growth but not a reproduction. So cell division, what is cell division? When a parent cell divided into the two daughter cells, that is a cell division. Cell का division हुआ, exactly same copy, exact same copy of their parent. So there is two phenomena, mitosis and meiosis. Firstly, we should talk about haploid and diploid. Human beings are diploid organisms. Diploid organisms. There is a term that is N. N is used for the haploid. We are diploids. Uh, we have 23 pair of chromosome. It means 46 chromosome. That is 2N. A pair of chromosomes are present in our body. So 2N is diploid. 3N triploid, like this. तो हम क्या है? We are 2N, diploid organisms. In mitosis, 2N form exactly two daughter cells of 2N. They form a cell exactly divided into two daughter cells. This is known as a equational division. Equational division. In meiosis, 2N meiosis have two processes: meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis 1, 2N divided into two daughter cell but with the n number of chromosome. This division is known as reductional division. कुछ रिड्यूस हुआ है ना, 2n से n बना है, तो क्या होगा? रिडक्शनल डिवीजन. बट इन meiosis 2, this n, single n, form two daughter n cells. So यहाँ क्या हो रहा है? n से n बन रहा है, same number of chromosomes. So this is also known as equational division. Mitosis occur in the somatic cells. Somatic cells. And meiosis in the germ cells. Let's talk about the cells. There is, in our body, there are of two types of cells: somatic cells and germ cell.
सोमेटिक, सोमा मीन्स होल बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में सोमेटिक सेल्स प्रेजेंट है, द होल बॉडी एक्सेप्ट germ cells. Germ cells are reproductive cells. Like in human male, that is sperm, and human female, that is ova. These are germ cells. And so but the rest of the cells are somatic cells. In somatic cells, there are of three types of cells: liable, stable, permanent. Liable means जो बार बार डिवाइड हो, डिविजनल, मतलब हमारी बॉडी लाइक एपिडर्मिस, जो हमारी स्किन सेल है, एपिडर्मिस सेल है, हमारी गट की जो सेल्स होती हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो सेल्स होती हैं, वो क्या करती है, बार बार डिवाइड करती हैं. सो दीज टाइप ऑफ सेल्स आर लायबल सेल्स. फॉर एग्जाम्पल स्किन सेल्स लाइक एपिडर्मिस एंड GI ट्रैक cells. But in stable cell means जिसको मतलब जैसे रिक्वायरमेंट हो उसी अकॉर्डिंग वो डिवाइड करती है, लाइक लीवर सेल्स, किडनी सेल. If there is any damage in the liver, kidney, so the cells start repairing or start dividing for the repairing process. So these are the stable cells. Stable cells means जो requirement के हिसाब से divide करेंगे. जब उनकी requirement होगी वो तभी divide करेंगे. Otherwise they are placed in a halt stage. That halt stage is known as G naught. हमारी सेल साइकिल में एक स्टेज आएगी जहां पे लाइक स्टेबल सेल्स हैं, अब कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही तो वो किस पोजीशन में होंगी, वो एक स्टेट में प्रेजेंट होंगी, दैट इज हॉल्ट. डिवीजन जो होगी उनकी हॉल्ट होगी, दैट इज G नॉट. क्विसेंट स्टेज, क्विसेंट स्टेज. परमानेंट सेल्स लाइक nerve cells, heart cells, these are permanent cell. एक बार डैमेज होगी दोबारा डिवीजन नहीं होगी, दोबारा रिपेयर नहीं होगी. So these are the permanent cells. Now the next is cell cycle. Let's talk about cell cycle. This is a cycle. It is divided into two phases. That is interphase. And this is M phase. M phase means mitotic phase. Mitotic phase or divisional phase. Or an interphase is preparatory phase. हमें पता है किसी चीज के फाइनल सबमिशन के लिए उसकी प्रिपरेशन जरूरी होती है. सो इंटरफेज इज द प्रिपरेटरी फेज एंड इट इज द 95% ऑफ द साइकिल and M phase is the 5% of the cycle, just 5%. But the main division takes place in the M phase and the preparatory phase is the interphase. Interphase is divided into three parts: G1, S and G2. G1 gap phase,
synthesis phase and gap 2 phase. This is the cell cycle. In the G1 phase, let's talk about the S phase. S phase में जो मेन काम होता है वो S phase में होता है. ये हम तीनों डिस्कस करेंगे, एक अलग स्लाइड पे डिस्कस करते हैं. पहले हम हॉल साइकिल की बात करेंगे. दिस हॉल साइकिल takes time 24 hours, approximately 24 hours. According to NCERT, a human cell required 24 hours to divide a cell. So 93 hours, interphase is of 93 hours. 93 hours का है. And M phase take only 1 hour. Okay. There is two terms. हमने एक टर्म हमने डिस्कस की N, that is number of chromosome. N is number of chromosome. And there is a term that is C. C is the content of DNA. According to NCERT, C is the content of DNA. If like there is 2C, it means 2C content of DNA in the G1 phase, and 2N content is the number of chromosome. So हमें देखना है डिफरेंट स्टेजेस पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम और नंबर ऑफ कंटेंट है वो कैसे चेंज होगा. ओके. एम फेज में क्या है? एम फेज में इसके 4 पार्ट्स हैं. प्रोफेज and metaphase, anaphase and telophase, and a cytokinesis that is different from the M phase. ये M phase में नहीं आएगा, that is cytokinesis. साइटोकाइनेसिस. अब हमने एक और स्टेज पढ़ी है, लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा एक जी नॉट भी होता है, दैट इज क्विसेंट स्टेज, जहां पे किसी सेल को अब डिवाइड नहीं होना, तो वो सेल किस फेज में होगी? जी नॉट फेज में. जी नॉट फेज कहां पे होगा? G1 में. जो भी सेल हॉल्ट होगी, मतलब डिवाइड नहीं करेगी, वो कहां पे जाके हॉल्ट होगी? G1 फेज में. और दैट स्टेज इज नोन एज क्विसेंट स्टेज. So please remember these points about the cell cycle, not every point of that. Next is G1 phase, like gap phase, gap 1 phase. S phase, G2 phase. Let's talk about the S phase. S means synthesis. तो इसमें क्या हो रहा है? मोस्टली सिंथेसिस हो रहा है. सिंथेसिस ऑफ डीएनए मीन्स इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दैट प्रोसेस नॉन एज रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन कहां पे हो रहा है? सिंथेसिस एस फेज में. अब यहां पे क्या हो रहा है? सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन. सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स. ये भी डुप्लीकेशन. सिंथेसिस मीन्स ऑल्सो ए डुप्लीकेशन, मतलब जो हमारे पास डीएनए है उसी की एक कॉपी बन रही है, दैट इज रेप्लिकेशन. ऑल्सो ए डुप्लीकेशन. एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स बन रहे हैं. डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल. सेंट्रियोल हमने पढ़ा है. सेंट्रोसोम क्या होता है? सेंट्रोसोम, that is a centriole, two centrioles and
astral fibers. This whole structure is known as centrosome, not covered by any membrane. Just ये मैंने एक whole structure के लिए बनाया है, not covered by any membrane. So G1 फेज में क्या होता है? प्रिपरेशन होती है S फेज के लिए. So G1 phase is the preparatory phase. अब प्रिपरेशन के लिए क्या चाहिए? ATP. क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ATP. ATP फॉर्मेशन इन द G1 phase. सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी. प्रोटीन्स कहाँ से आएंगे? RNA से. RNA भी बनेगा. So these steps are occurred in the G1 phase. प्रिपरेशन के लिए एटीपी फॉर्मेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आरएनए चाहिए. सो दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस फेज. जो भी चीज, जो भी प्रिपरेशन जीवन में होगी, वही चीजें एस फेज में पॉसिबल हो सकती है. एस फेज में अब ये हो गया सिंथेसिस ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन. अब हिस्टोन, अब यहां से हमें हिस्टोन कैसे याद होगा? हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट इज डीएनए. डीएनए ऐसे खुला हुआ पड़ा है. डीएनए पे हिस्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं अटैच होंगे, यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, लाइक दिस इज हिस्टोन प्रोटीन, दिस इज डीएनए. डीएनए रैप ऑन दी हिस्टोन प्रोटीन. ये हिस्टोन प्रोटीन है, इसके ऊपर से डीएनए रैप करेगा. तो अब डीएनए है, डीएनए बन गया. उसके कंडेंसेशन के लिए, ताकि वो छोटा हो जाए, हमारी सेल में 2 मीटर का सेल कितना छोटू सा है, उसमें 2 मीटर का डीएनए है. सो वो कैसे एडजस्ट होगा? सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंदर. तो उसके लिए उसकी कंडेंसेशन होती है. दैट कंडेंसेशन विल बी पॉसिबल ओनली विद द हिस्टोन प्रोटीन्स. हिस्टोन प्रोटीन, अब डीएनए बना है तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी बनेंगे, एंड ए सेंट्रियोल डुप्लीकेशन. ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. इन द G2 फेज ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है. ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन हमने क्या कहाँ पढ़ा था? किससे बनते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन? माइक्रो ट्यूब्यूल्स. और जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स, वो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के. तो हमें एम फेज में जो है हमारे स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होएगी. अब G2 फेज इज द लास्ट फेज ऑफ द इंटरफेज. देन ये हमारा लास्ट फेज है इंटरफेज का. तो जो प्रो फेज है उसकी प्रिपरेशन कौन करेगा? G2 फेज करेगा. प्रो फेज में, एम मेटा फेज में स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन प्रो फेज में स्टार्ट हो जाती है. सो यहाँ पे क्या बनेगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन. ट्यूबुलिन प्रोटीन. अब हम बात करते हैं 2N और 2C की. हमने G1S और G2 में क्या पढ़ा? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, G1 में 2N है. डीएनए कंटेंट है G1 में 2C है. अब एस फेज में हमने पढ़ा सिंथेसिस ऑफ डीएनए. रेप्लिकेशन हो रहा है, मतलब जो डीएनए का अमाउंट है वो डबल हो जाता है. तो जो 2C है वो क्या हो जाएगा? 4C. बट सिर्फ डीएनए का अमाउंट, डीएनए कंटेंट डबल हुआ है, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं हुआ. लाइक दिस, हमें पता है ये क्रोमोसोम है. क्रोमोसोम पे अब डीएनए का जो डुप्लीकेशन हुआ है, डुप्लीकेशन मीन्स डीएनए सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, उससे क्या होगा? ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाएंगे. यानी कि एक सिंगल क्रोमोसोम है, बट जो डीएनए कंटेंट है वो डबल हो गया. दैट इज 2N है, 2N ही रहेगा. ये एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ही रहेगा, बट जो इसके अंदर कंटेंट है डीएनए का, वो क्या हो गया? डबल हो गया. अब क्रोमोसोम है क्या?
हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन इतनी ज्यादा कंडेंसेशन होगी, ये क्या बनाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे करके क्रोमोसोम बना रहा है। दिस इज ए क्रोमोसोम। थोड़ा साफ सा यहाँ बना देती हूँ। दिस इज ए क्रोमोसोम। कुछ नहीं है, डीएनए एंड प्रोटीन है। और जब ये रेप्लिकेशन हुआ तो सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन हुई, क्रोमेटिड्स बन गए। सो क्रोमेटिड्स बने हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, एस फेज में क्रोमेटिड्स भी बन रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डीएनए कंटेंट डबल हुआ या सिस्टर क्रोमेटिड्स की फॉर्मेशन हुई, ये भी बोल सकते हैं हम। सो क्रोमेटिड्स बने हैं, ये बोल सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड फॉर दैट। सो यहाँ पे क्या हुआ, डीएनए कंटेंट डबल हुआ क्योंकि रेप्लिकेशन हुआ, बट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम है, 46 क्रोमोसोम है, 46 ही रहेंगे। इन G2 फेज, यहाँ के बाद यहाँ पे कोई इनसे छेड़छाड़ नहीं हो रही, ना जीवन में ना क्रोमोसोम नंबर के साथ, ना क्रोमोसोम डीएनए कंटेंट के साथ। इन मेटाफेज, मेटाफेज का जो लास्ट है, टेलोफेज में फाइनल जो साइटोकाइनेसिस है, यहाँ के बाद मेटाफेज के बाद जो डॉटर सेल्स हमें मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, 2n 2c, सॉरी G2 में क्या है कंटेंट, 4c है, यहाँ 4c था, यहाँ भी सेम कंटेंट रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। अब यहाँ से बनता हुआ आया ना, G1 में बना, G2 में डुप्लीकेट हुआ, देन G2 एस फेज में डुप्लीकेट हुआ, G2 में ट्रांसफर हुआ तो सेम नंबर ऑफ कंटेंट। देन एम फेज में डिवाइड हो रहा है, दो डॉटर सेल बन रही है, तो दो डॉटर सेल में ये ऐसे जाएगा, 2n 2c 2n 2c। ओके, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहीं भी चेंज नहीं हो रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवीजन में भी चेंज नहीं हो रहे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो डॉटर सेल्स बन रही हैं वहां भी चेंज नहीं हो रहे। जो डीएनए कंटेंट है वो हाफ हो रहा है बस। लाइक यही क्रोमोसोम यहाँ पे जाके ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ये कैसे था, ऐसे था, यहाँ पे एस फेज में क्या बन गए, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन गए। ऐसे बनते नहीं है, बस अमाउंट चेंज होता है, अमाउंट डबल हो जाता है। ऐसे बनेंगे प्रोफेज में, जो शेप है ये हमारी प्रोफेज में जाके आएगी, बट यहाँ पे कंटेंट डबल हो जाता है। सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। यहाँ पे ये सिंगल क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, दूसरा ये है, एक ये है, दूसरा ये है, अमाउंट डबल हो रहा है डीएनए का, जो इसके अंदर डीएनए है, यहाँ पे भी ये सेम ही होगा। एक क्रोमोसोम ये है, हमारे कितने होते हैं टोटल, 46 क्रोमोसोम। फिर जो ये साइटोकाइनेसिस में दो डॉटर सेल बनेंगी, ये ऐसे हो जाएंगे, एक ये है, एक ये है। कम टू दी एम फेज। एम फेज में कितने फेजेस हैं, प्रोफेज, 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, and the last one is telophase. Let's start with the prophase. Prophase. This is a cell in early prophase. Early prophase में क्या होगा, हमने देखा जो G1 में है प्रिपरेशंस हो रही हैं, एस में क्या है, डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है, G2 में भी कंटेंट उतना ही है, बट जो क्रोमोसोम्स हैं
वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर वॉल नहीं है, जस्ट ए एरिया। सो ये जो क्रोमोसोम्स है ये पूरी सेल में ऐसे ही फैले हुए हैं। न्यूक्लियस नहीं होता प्रोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, गोल्गी बॉडीज एब्सेंट, ईआर एब्सेंट, कुछ नहीं होता, कोई ऑर्गेनेली नहीं होती, जस्ट क्रोमोसोम्स होते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में, ऐसे ऐसे पड़े हुए होते हैं क्रोमेटिन की फॉर्म में। सेंट्रियोल हमारा बन चुका था, एस फेज में सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। कितने सेंट्रियोल होते हैं? 2 सेंट्रोसोम, 2 सेंट्रियोल एक पोल पे, 2 इस पोल पे, अपोजिट पोल्स पे प्रेजेंट होंगे। ये अर्ली स्टेज है। इन द लेट स्टेज प्रोफेज में क्या होगा? क्रोमोसोम वाइट से ले लेते हैं। क्रोमोसोम्स ऐसे होंगे, लाइक हम 3 क्रोमोसोम लेके चलेंगे, ये ऐसे कहीं भी पड़े हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहीं भी पड़े हैं। दिस इज सेंट्रियोल। ओके, दिस इज द प्रोफेज। कुछ नहीं होता प्रोफेज में। जो क्रोमेटिन में क्रोमोसोम मटेरियल है वो अर्ली फेज में क्रोमेटिन की तरह ऐसे ही पड़ा होता है। लेट स्टेज में वो क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होती है, जैसे हमने इसमें पढ़ा था। लेट स्टेज, जो ये अर्ली स्टेज है दैट इज अर्ली स्टेज क्रोमेटिन, एंड द लेट स्टेज में ये कैसे बनेंगे? इस तरह से बन जाएंगे। दिस इज लेट प्रोफेज। द नेक्स्ट इज, स्लाइड्स ऐड कर देते हैं। प्रोफेज हमारा हो गया, देन नेक्स्ट इज मेटाफेज। बट आई थिंक एम फेज करने से पहले हम एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं। हमने प्रोफेज कर लिया, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज हम बाद में करेंगे, पहले हम एनसीईआरटी रीड करते हैं। सो दिस इज, यू कैन रीड दिस, आपको इजिली समझ आ जाएगा। Cell cycle, cell division is very important process in all living organism. During this cell cycle, DNA replication and cell growth also takes place. कहाँ होता है replication? S phase में. And this, all these process known as cell division, DNA replication, cell growth hence have to take place in the coordinated way. Coordinated way में मतलब G1 है, S है, G2 है, हर में coordination चल रहा है। पहले ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, then ये। So एक coordination way में चलेगा, and the formation of progeny cells containing intact genome, the sequence of events by which cell duplicates its genome. Genome means DNA, genetic material. जो सेल है वो डुप्लीकेट, पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल में जीनोम जा रहा है वो एग्जैक्ट सेम कॉपी जाएगा। सो डुप्लीकेशन is the very important part. Synthesis of other constituent of cell divides into two daughter cell, that is known as terms cell cycle. Also cell growth in terms of cytoplasmic increase is a continuous process. एक continuous process है, जो सेल बार बार डिवाइड हो रही है उनमें ये continuous process है। DNA synthesis occur only one specific stage. कौन सी stage है? That is S phase. In the interphase, replicated chromosomes are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events of cell division. Phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell is illustrated by a human cell in the culture. This cells divided once in approximately 24 hours. हमने पहले भी पढ़ा है, कितने कितने टाइम में कंप्लीट होती है वन साइकिल? अप्रोक्सीमेटली इन 24 hours. The duration of cell cycle can vary from organism to organism and from cell type to cell type. Cell to cell भी डिफरेंट हो सकता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट हो सकता है दिस टाइम। फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, यीस्ट कितने टाइम में डिवाइड करती है? यीस्ट की जो सेल है 90 मिनट्स। The cell is divided into the two basic phases. हमें पता है this is interphase G1 S G2 and this is M phase, mitosis phase.
Anaphase represent the phase when the actual cell division or the mitosis occur. Interphase represent the phase between the two successive M phases. What is the meaning of this line? Two between the two successive M phases. ये क्या है? M phase है, G1 है, S and G2. M interphase और फिर क्या है? M. So interphase is between the two successive M phases. सेल डिवीजन जो है वो चलती रहती है. अब एम फेज, जैसे ही एम फेज खत्म होने लगेगा, खत्म होते होते ही उसमें जीवन फेज स्टार्ट हो जाता है. सो एम फेज, इंटरफेज, एम फेज, एम फेज, इंटरफेज, एम फेज. एडवांस में प्रिपरेशन होती है हर फेज की. एडवांस में सब कुछ स्टार्ट हो जाता है. कंप्लीट खत्म हो गया ऐसे बैठना कुछ नहीं होता इस टाइप का. एम फेज खत्म होने जा रहा है, वहां पे जीवन के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है. G2 फेज खत्म होने जा रहा है, एम फेज के लिए स्टार्ट हो गई है प्रिपरेशन. सो इंटरफेज इज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एम फेजेस. सक्सेसिव मींस एक कंप्लीट सक्सेस साइकिल. एम फेज को तभी एग्जिट होगा जब वो साइकिल सक्सेसफुल होगी. तो टू सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में इंटरफेज आता है. It is significant note that 24 hours duration of the cell lumen, the cell division proper last only for 1 hour. M phase कितने टाइम का होता है? 1 hour का. And the rest 90 interphase last more than 95% of the duration of the cell cycle. M phase start with the nuclear division. M phase में nuclear division start होती है corresponding to the separation of the daughter chromosomes. मैंने प्रोफेज आपको स्टार्ट करा दिया है. प्रोफेज में जो न्यूक्लियर डिवीजन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो वहां से न्यूक्लियर डिवीजन स्टार्ट हो जाती है. सो जो न्यूक्लियर डिवीजन है उसको कैसे वो क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस. मतलब अगर न्यूक्लियस है, ये किसी सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड होके न्यूक्लियस डॉटर सेल्स बना रहा है, न्यूक्लियर डॉटर बना रहा है, that is karyokinesis. Karyo means nucleus. Nucleus की formation, synthesis of nucleus usually ends with the division of the cytoplasm. End किससे होएगा? साइटोप्लाज्म के डिवीजन में. ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होएगा तो ये क्या बन जाएंगी? ऐसे. उसको क्या बोलेंगे? साइटोकाइनेसिस. द इंटरफेज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज. रेस्टिंग फेज है, प्रिपरेटरी फेज है. हम इसको रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं. कहाँ गया हमारा इंटरफेस? यहाँ पे प्रिपरेटरी फेज एंड रेस्टिंग फेज. कहाँ पे है? is the time during which the cell is preparing for the division by undergoing both cell growth and cell DNA replication in orderly manner. एक order में preparations होती हैं. कैसे होंगी? G1 gap 1 synthesis gap 2. G1 corresponding interval between mitosis and initiation of DNA replication. G1 कहाँ पे है? यहाँ पे replication का start हो रहा है, यहाँ पे M है. तो G1 is between the M phase, mitosis and replication के बीच में. During G1 phase, the cell is metabolically active. Metabolically active means ATP formation हो रही है. G1 में क्या हो रहा है? Metabolically active. हम पढ़ चुके हैं. इसका मतलब क्या है? ATP formations हो रही है. Then it continuously grows but does not replicate its DNA. रेप्लिकेशन नहीं होगा जीवन में. एस और सिंथेसिस फेज मेक्स द पीरियड ड्यूरिंग द डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. अब एस फेज में होगा सिंथेसिस ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. दिस इज द डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन. पेन थोड़ा ये वाला ले लेते हैं. ड्यूरिंग दिस टाइम अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल. हमने पढ़ा है जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा. G1 में 2C था तो S फेज में क्या हो जाएगा? 4C. However, there is no increase in the chromosome number. Chromosome number G1 में कितने थे? 2n. S फेज में कितने रहेंगे? 2n. So, if the initial amount of DNA is 2C, then increases to 4C. There is no increase in the chromosome number if the cell had diploid 2n number. Cell diploid है
तो क्या होगा, G1 phase, even at G1, even after S phase, the chromosome numbers are remains same, 2n ही होंगे. In animal cells, during the S phase, DNA replication begins. हमने ये पढ़ चुके हैं. Begins in the nucleus and the centriole duplicates. हमने 3 फीचर्स पढ़े थे एस फेज के. सिंथेसिस ऑफ डीएनए, synthesis of histone proteins, and the last one is centriole duplicates in the cytoplasm. During G2 phase, proteins are synthesized in the preparation for the mitosis. G1 में क्या हो रही है, एम फेज की प्रिपरेशन हो रही है. कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा था, ट्यूबुलिन प्रोटीन. G2 में क्या हो रहा है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की फॉर्मेशन. एंड द नेक्स्ट वन इज, अब है, some cells in the adult animals do not appear to exhibit division. For example, heart cells. हार्ट सेल्स में डिवीजन वो एक होल्ड स्टेज में प्रेजेंट होती हैं सेल्स, वो डिवाइड नहीं करती, परमानेंट होल्ड स्टेज में प्रेजेंट होती हैं. मैनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, वो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, स्टेबल सेल्स. एज नीडेड टू रिप्लेस द सेल्स, अगर कोई सेल में इंजरी हो गई, कुछ खराब हो गया, तो वो उसको रिप्लेस कर देगी. दैट हैव लॉस्ट बिकॉज ऑफ द इंजरी एंड द सेल डेथ. तो वो कौन सी सेल्स होंगी, स्टेबल सेल्स. These cells do not divide, further exit G1 phase to enter an inactive stage that is called quiescent stage. Quiescent stage कहाँ पे है हमारी, ये रही हमारी quiescent stage. That is, ये कहाँ पे है, G1 में है. G1 में उसको होल्ड करके रखती है, G1 से एग्जिट नहीं लेगी, मतलब एस फेज में एंटर नहीं करेगी वो. G1 में एक होल्ड स्टेज पर प्रेजेंट होगी. दैट होल्ड स्टेज, that whole stage is known as quiescent stage. Cells in this phase stage remain metabolically active but no longer proliferate. Metabolically active होंगे, hold stage में होंगे, active cells होंगी, but proliferate मतलब divide नहीं करेगी, unless called to dose depending on the requirement के हिसाब से depend करता है. Mitotic cell division is seen in the diplomatic somatic cells. Mostly somatic cells में होती है mitosis. हमने पढ़ा germ cells में कौन सी होती है, meiosis. There is few exceptions where haploid cells divide by mitosis. For example, main honeybees. कुछ haploid cells होती हैं जहाँ पे mitosis होती है. That is male honeybee. Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cells. ये आपको याद करना पड़ेगा, इसके एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे. कुछ हैप्लॉइड सेल्स भी होती हैं जहाँ पे माइटोसिस होती है. सो नेक्स्ट इज एम फेज. दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, ड्रामेटिक एंड डायनामिक, जहाँ पे चेंजेस होते हैं, involving a major reorganization of virtually all the components of the cell since the number of chromosomes in the parent and progeny are same. हम कई बार देख चुके हैं, जो पेरेंट में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में होंगे. दैट इज इक्वेशनल डिवीजन, मतलब 2n से 2n ही बनेगा. 2 डॉटर सेल्स बनेंगी तो सिंगल डॉटर सेल 2n ही होगी. So the convenience, mitosis has been divided into the 4 stages of the nuclear division. न्यूक्लियर डिवीजन को क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस. 4 स्टेजेस है न्यूक्लियर डिवीजन की. जो एम फेज है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन. साइटोकाइनेसिस एक अलग फेज है, एम फेज के नेक्स्ट साइटोकाइनेसिस फेज है. It is very essential to understand that cell division is a progressive process. Very clear-cut lines cannot be drawn between various stages. Karyokinesis involves the 4 stages: metaphase, prophase, metaphase, anaphase, and telophase. Let's talk about the phases. Then we will read the NCERT. Again, come to the prophase. हमने प्रोफेज में अर्ली स्टेज पढ़ी, लेट स्टेज पढ़ी. प्रोफेज में क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ER नहीं होता, कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होता. इन द प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, DNA is present. Genome, genetic material is present in the form of chromatin.
लाइक लूज स्ट्रक्चर, तो जो क्रोमोसोम का लूज स्ट्रक्चर है उसमें प्रेजेंट होगा, बट एट द एंड ऑफ द प्रोफेज यानी कि लेट लेट प्रोफेज क्या होगा, क्रोमेटिन्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम्स एक शेप ले लेंगे, जो हम कहीं पे भी ऐसे शेप ले लेंगे। इस तरह से हम इनको देखेंगे लेट प्रोफेज में। ये हमें एज ए मतलब हम जो प्रोफेज है, जो कंप्लीट क्रोमोसोम है, हम उसको सिर्फ मेटाफेज में ही देख सकते हैं, और स्टेजेस में हम सेल में क्रोमोसोम नहीं देख सकते, हमें दिखेगा ही नहीं थ्रू द माइक्रोस्कोप। हमें कौन सी स्टेज पे क्रोमोसोम दिखता है, मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम हम एक्सपेरिमेंटली उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मेटाफेज। Metaphase. In metaphase, the chromosomes, sorry, chromosomes are with the white. Chromosomes are lie in somewhere in the cytoplasm. These are chromosomes. These two centrioles, and this is the ester fibers. The formation of ester fibers. And the green, some continuous and discontinuous spindle fibers also present in the early metaphase stage. These are continuous spindle fibers, and this one is discontinuous spindle fiber. So this is the early stage of early metaphase stage. Early metaphase. In the late metaphase, uh, the chromosomes are placed in an equatorial plate, on an equatorial plate like this. They are present in the equatorial plate. So these spindle fibers are attached with the kinetochores. These are ester fibers, spindle fibers. स्पिंडल फाइबर्स हमने पहले भी पढ़ा, कहां पे अटैच होंगे, काइनेटोकोर. This is the kinetochore, a disc-shaped structure at the disc-shaped structure at the centrosome. ये बीच में centrosome है, and a disc-shaped structure are present on the centrosome, that is kinetochore. Spindle fibers are attached with that kinetochore in this metaphase stage, that is late metaphase. In this phase we can see the complete structure of chromosome. हम experimentally एक सेल को मेटाफेज स्टेज में ही देख सकते हैं, बाकी स्टेजेस में हमें कुछ नहीं दिखेगा, सब कुछ ऐसे घिचपिच दिखेगा। जो बिल्कुल क्लियर स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का, वो हम मेटाफेज स्टेज में ही देख सकते हैं। दिस इज द इक्वेटोरियल प्लेट. Equatorial plate. This is all about metaphase. The next one is anaphase. This is anaphase. The chromosomes are moved towards the opposite pole. They are separated from the centrosome and move towards the opposite. इसको ऐसे बना लेते हैं. These sister chromatids are detach, segregate
The main function of the anaphase is segregation of the chromosomes. These are the centrioles. They are moved towards their poles. These sister chromatids. The main first point of anaphase is the segregation of sister chromatids. जैसे ये ऐसे स्ट्रक्चर था sister chromatids. They are attached with the centrosome. Centrosome separate and the sister segregation of sister chromatids happen. This like this. So one chromatid moved. These chromatids, sister chromatids, are move opposite towards the centrioles. This is the main feature of the anaphase. In the next phases, that is telophase. In the telophase, कैसा स्ट्रक्चर था? जो chromatids हैं with near about the centrioles. These are centrioles. But in the telophase, there is formation of nuclear membrane. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस मतलब सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इज नोन एज कैरियोकाइनोसिस. These are the nucleus are formed, daughter nuclei are formed in the telophase. तो ये synthesis of daughter nuclei. अभी तक साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हुआ, सिर्फ न्यूक्लियस बना है. सिंथेसिस ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन present. Golgi bodies reforms present. ER reforms. These are reformed. This is the structure of telophase. Then next is cytokinesis. Cytokinesis हम NCERT read करेंगे, वहीं पे हम cytokinesis discuss करेंगे. Let's start with the prophase. Prophase, which is the first stage of karyokinesis of mitosis. Mitosis M phase is mainly based on the karyokinesis, मतलब formation of nuclear division, nucleus. So mitosis follows S and G2 of the interphase. In the S and G2 phase of the new DNA molecule formed is not distinct but intertwined. Prophase is marked by the initiation of the condensation of chromosomal material. जो प्रोफेज है हमने देखा उसमें क्या हो रहा है, अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा था, कंडेंसेशन हो रही थी. अर्ली प्रोफेज में दिस इज द प्रोफेज, कंडेंसेशन हो रही है अर्ली प्रोफेज में. देन इन लेट प्रोफेज दे फॉर्म्ड लाइक द क्रोमोसोम्स. Chromosome material becomes entangled during the process of chromatin condensation. The centrosome, which had undergone duplication during S phase. सेंट्रोसोम, इसने सेंट्रोसोम बोला, हमने क्या बोला था, सेंट्रियोल. सेंट्रियोल है क्या, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रियोल प्लस एक्स्ट्रा पेरीसेंट्रियोलर मतलब एस्ट्रल फाइबर्स. These are the whole structure of centrosome which had undergone duplication during the S phase. S phase में centriole duplicate होता है. Now begins to move towards the opposite pole of the prophase. में क्या होगा, वो opposite poles में move करेगा, यानी कि centriole एक यहाँ होगा एक यहाँ आएगा. Okay. Begins to move opposite poles. The characteristics: chromosomal material condensed to form compact mitotic chromosome.
पहले कंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमोसोम की फॉर्मेशन होएगी. इन द लेट प्रोफेज क्रोमोसोम्स आर सीन टू कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स. कैसे सीन होंगे? विद द टू क्रोमेटिड्स अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर. दिस इज द सेंट्रोमियर. आई थिंक मैंने इसको सेंट्रोसोम बोला है. इन द लास्ट स्लाइड मैंने मेटाफेज में जब स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं मैंने इसको सेंट्रोसोम बोला है. दैट इज, इसको करेक्ट करना, दैट इज सेंट्रोमियर. सेंट्रोसोम इज द, दिस इज द सेंट्रोसोम एंड दिस इज द सेंट्रोमियर. और सेंट्रोमियर पे क्या प्रेजेंट होता है? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट इज काइनेटोकोर. प्लीज करेक्ट दिस. ये सब जैसे सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, सब थोड़ा बोलने में कंफ्यूज, मुझे नहीं पता था मैं सेंट्रोसोम बोल रही हूँ, बट दैट इज सेंट्रोमियर. दिमाग में सेंट्रोमियर चल रहा था, जुबान पे सेंट्रोसोम हो गया. सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द इंटरफेज. इंटरफेज किस में डुप्लीकेशन होता है? एस फेज में. moves towards the opposite poles. Opposite poles में जाएगा. Each centrosome radiate out microtubules, that is esters. Esters भी microtubules. Spindle fibers and esters are formed by the microtubules. Two esters together with the spindle fibers form the mitotic apparatus. Mitotic apparatus. Esters. These are esters and spindle fibers. They form like the mitotic apparatus. Cells at the end of the prophase viewed under the microscope do not show Golgi. Golgi complex, ER, nucleolus, nuclear envelope ये शो नहीं होंगे. अर्ली प्रोफेज में आप देख सकते हैं क्रोमेटिन जो है, क्रोमोसोम जो है, डीएनए मटेरियल जो है क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मतलब लेस कंडेंस्ड फॉर्म में होगा. इन द लेट प्रोफेज दीज आर दे फॉर्म्ड कंप्लीट कंडेंस्ड क्रोमोसोम like this, and they are lie somewhere in the cytoplasm. In the metaphase, the complete disintegration of the nuclear envelope complete खत्म हो जाएगा. Start the second phase of mitosis. Hence the chromosome are spread through the cytoplasm. Chromosomes cytoplasm में कहीं present होंगे. Condensation of chromosome is completed. They can be observed observed clearly under the microscope. एक मेटाफेज स्टेज है जहां पर हम जो क्रोमोसोम्स हैं उनको क्लियरली विजिबल कर सकते हैं. At this stage, metaphase is made up of two sister chromatids. Two sister chromatids. These are the two sister chromatids. Small disc-shaped structure at the surface of the centromere. सेंट्रोमियर प्रेजेंट है इसमें. मैंने लास्ट स्लाइड में शायद सेंट्रोसोम बोला है, सो दिस इज माय मिस्टेक. एंड शायद गलती से बोला गया क्योंकि आई नो दैट दिस इज सेंट्रोमियर. तो वो दिमाग में सेंट्रोमियर चल रहा है, बार बार सेंट्रोसोम सेंट्रोमियर आ रहा है, तो दैट्स व्हाई मैंने सेंट्रोसोम बोल दिया. सो दिस इज द सेंट्रोमियर. These structures are serve as the attachment of the spindle fibers. Kinetochore पे क्या present क्या attach होंगे? Spindle fibers. The spindle fibers as the metaphase is characterized by all the chromosome coming like in a equatorial plate. ये अर्ली मेटाफेज में तो कहीं पे भी प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म, बट इन द लेट मेटाफेज, द मेन स्टेज ऑफ द मेटाफेज, द क्रोमोसोम्स लाई इन ए plate, equatorial plate. These are the sister chromatids connected by its kinetochore to spindle fibers from the opposite pole, and plate aligned in the chromosome at metaphase is known as, that plate is known as metaphase plate. Equatorial पे present है, एक line में एक plate की तरह present है, that is metaphase plate. Spindle fibers attached to kinetochore of the chromosome. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphase plate through the spindle fibers to both poles. Anaphase. Onset of anaphase arranged at the metaphase plate split simultaneously. The main function of anaphase is chromosome. Sister chromatids are split. Segregation of sister chromatids. कैसे बनेंगे? ऐसे. जो इनका सेंट्रोमियर होगा वो किस साइड होगा? ऑपोजिट पोल, पोल्स की साइड होगा सेंट्रोमियर.
So, next is they are daughter chromosomes of the future daughter nuclei begin their migration towards the opposite pole. Chromosome moves away from the equatorial plate. The centromere of each chromosome remains directed towards the pole. Poles की side centromere होगा. With the arms of chromosome trailing behind this, the anaphase stage is characterized by chromosomes split and chromatids separate like this. Chromosomes split कर रहे हैं. Segregation of chromosome takes place in the anaphase. Chromatids move towards the opposite poles. In the telophase, at the beginning of the final stage of karyokinesis की formation start हो रही है, मतलब nuclear formation start हो रही है. Chromosome have reached their respective poles, decondense and lose their individuality. The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect. हमें अलग से क्रोमोसोम्स नजर नहीं आएंगे लाइक दिस, ऐसे नजर आएगा. ये क्या बन रहा है? क्रोमोसोम एनवेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बननी स्टार्ट हुई, न्यूक्लियस बन गया. उसके अंदर जो क्रोमेटिन्स है, क्रोमोसोम्स हैं, वो हमें अब टेलोफेज में दिखाई नहीं देंगे. क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी लॉस्ट. हमें नहीं पता क्या है उसके अंदर, क्या नहीं है, बट ये ऑपोजिट पोल्स में होंगे. Nuclear envelope develops around the chromosome cluster at each pole towards forming two daughter nuclei. ये two daughter nuclei बन गया. Nucleolus Golgi complex ER reforms. अब ये दो daughter nuclei, then cytoplasm divided. Cytoplasm divide करेगा, दो daughter cells बनेंगी. This is the cytokinesis. Mitosis accomplished not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself divided. सिर्फ न्यूक्लियस नहीं बन रहा, टेलोफेज में जैसे न्यूक्लियस बन गया, दो न्यूक्लियर डॉटर न्यूक्लियाई डिवाइड हो गए, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा, अलग से दो सेल्स बन जाएंगी. अब इसमें दो एनिमल्स का अलग प्रोसीजर है. एनिमल में क्या होगा? फरो टाइप स्ट्रक्चर बनेगा लाइक दिस ओ सॉरी लाइक दिस फरो टाइप. ये अंदर की साइड फोर्स लगेगा और इसको क्या बोलेंगे? सेंट्री प्लेट फोर्स. सेंट्री प्लेट. ये फरो फरो और फोर्स लगा के तो साइटोप्लाज्म में वो डिवाइड करेगा. ये तो एनिमल सेल का प्रोसेस है. प्लांट सेल में क्या होगा? प्लांट सेल में हमें पता है प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो दो सेल्स को कनेक्ट करता है. तो इसमें क्या होगा? जो ये सेल है, इसमें बाहर की साइड फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. They form like structure, this type of structure. Two daughter cells are attached with the plasmodesmata. That is plasmodesmata. फिर यहाँ पे एक सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी, that is cell wall. जो इस सेल वॉल, दोनों सेल वॉल्स के बीच का पार्ट है, that is middle lamella. मिडल लैमिला. इस तरह से प्लांट्स में और एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस होगा. लेट्स रीड दैट. But the cell itself is divided into the two daughter cells by the separation of the cytoplasm, that is called cytokinesis, at the end which cell division gets completed. In animal cells, this is achieved by the appearance of the furrow. Furrow ban jayegi in the plasma membrane. The furrow gradually deepens, ultimately join the center, divide the cell cytoplasm into the two. Plant cells enclosed by a relatively inextensible cell wall. Therefore, they undergo cytokinesis by the different mechanism. In plant cells, wall formations start in the center of the cell and grows towards the outward to meet existing lateral walls. Outward, बाहर की side force लगेगा. The formation of new cell wall begin with the formation of a simple process called the cell plate that represent the middle lamella between the walls of the two adjacent cells. At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria plastid get distributed between the two daughter nuclei, two daughter cells. So
जैसे जैसे हर चीज डुप्लीकेट हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआरबी डुप्लीकेट्स हुए, फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, तो सारी चीजें इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, दोनों सेल्स में जाएंगी एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्म। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टीन्यूक्लिएटेड, हमने मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशंस भी पढ़ी हैं, जहां एक सेल में मल्टीन्यूक्लियस हो, उसको क्या बोले हैं, सिनकाइटियम। लाइक ये साइटोप्लाज्म है, इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, तो उस कंडीशन को बोलेंगे सिनकाइटियम। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। The next is significance of mitosis. Mitosis is an or the equational division is usually restricted to the diploid cells. Diploid cells में होती है mainly, but हमने अंदर पढ़ा था कि कुछ haploid cells, कुछ exceptions होते हैं जहाँ पे mitosis भी haploids में भी present होती है. However, in some lower plants and some social insect, haploid cells also divide by mitosis. It is very essential to understand the significance of this division is in the life of an organism. Mitosis usually result in the production of diploid daughter cell with identical genetic complement. Significance क्या है? जो genetic material है वो same copy of genetic material कहाँ पे जाएगा? डोटर सेल्स में जाएगा. The growth of multicellular organism is due to mitosis. Cell growth result in distributing the ratio between the nucleus and the cytoplasm. It therefore becomes essential for the cell to divide to restore nucleocytoplasmic ratio. मतलब सेल में एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये रेशियो को मेंटेन करता है. A very significant contribution of the mitosis is the cell repair. Cell repair करता है. The cell of the upper layer of epidermis, cell of the lining of the gut, blood cells are being constantly replaced. डेड सेल हो गई, एक के बाद एक सेल बन रही है, जो पुरानी सेल्स एंड डेड हो गई हैं, सो ये क्या कर रहा है, रिपेयर करता हुआ जा रहा है. Mitotic division in the meristematic tissue, the apical and lateral cambium result and a continuous growth of the plant throughout the life. जो like this, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो एपिकल और लेटरल कैम्बियम है टिप पे, उसमें क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, उसमें थ्रू आउट द लाइफ सेल डिविजन्स होती हैं. So that is the significance of mitosis. So let's wrap for the today. Please do like, subscribe and share my channel. Thank you so much.